भाई मुझे ऐसे बताओ, मैंने मन में सोचा मेरे चर्च के लोग अगर बिना जॉब के रहे, गरीब रहे, प्रॉस्पेरिटी ना हो, अरे फोन भी ना हो चलाने के लिए, कैसे जी पाओगे? If I want my church people to be poor and without a phone and without a job, how will it नया work? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। फटा जींस पहन के आ रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं है, फिर लोग बोलेंगे इनके चर्च में लोग फटे कपड़े पहन के आ रहे हैं। Then the new problem will arise, people will come with torn jeans, and then other people will say their church has people who come with तो torn भाई jeans. मैंने जो वर्ड दिया तो फटा जीन्स की जगह नया ही जीन्स पहनेगा ना, मतलब जब जॉब मिलेगा तो। As release the word, now that person will not wear torn jeans, but he will wear a good jeans. What has anybody else to do with the word God is giving for this church? किसी और से क्या लेना देना है अगर परमेश्वर ने इस कलीसिया के लिए वचन को? What has anybody to do with the word God has given you for your life, for your family? It doesn't matter what they think. You need to believe the word. जब परमेश्वर ने आपको जो वचन दे दिया, फिर लोग क्या कहते हैं वो मायने नहीं रखते, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं। Hallelujah. Zacchaeus believed the word of God. और ज़क्याई जो था वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया, People said he has gone mad. और लोग बोले ये पागल हो गया। Zacchaeus said, I will forgive everyone's debt. और ज़क्याई ने बोला कि मैं सबके कर्जों को माफ कर दूंगा। Other people are like, इसको अभी तक इसका अकाउंटिंग अच्छा था, अभी अकाउंटिंग खराब हो गया इसका। People were saying क्योंकि अकाउंटेंट था ना वो। his accounting was good till now, but now his accounting is कोई good. अकाउंटेंट देखा है आपने यीशु मसीह के मिलने के बाद, जिसको उस अकाउंटेंट ने पैसा दिया सबके पैसे माफ? कैसे चलेगा धंधा? And after meeting Jesus, whatever he used to take from people, lend people, now he is giving them back. Yeah. How will the business work? Because he is a tax collector. और कैसे चलेगा ऐसे business? But कुछ के लिए नहीं वाला। but when you hold on to Jesus and His word dear to your heart, it doesn't matter what others and the world think about. और जब आप परमेश्वर के वचन को अपने दिल के करीब रखते हो तो आपको इससे मतलब नहीं कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? एक और चीज बोलूं, थोड़ा तो नहीं मानोगे। ऐसे वो लोग आजकल ना think- डर हो गया है लोगों को People ये are भी fearful बोलने to- के लिए कि हम क्रिश्चियन हैं। They are fearful to say I am a Christian. Yeah, come on, preach it, pastor. किसी ने मुझसे पूछा आप क्या करते हो? Somebody asked me, what do you do? मैंने बोला मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ जिनके पूरे वर्ल्ड में अनगिनत ब्रांचेस हैं। I told that person, I work with an organization that has unlimited branches all over the world. ये नहीं बोला चर्च है, I didn't tell them I work with the church. मैं बोला ऑर्गेनाइजेशन है। I said it's an organization. ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? And then they asked, which organization is this? आओ मेरे पास तो मैं बताऊंगा। And I told them, come to my organization, I will tell you. See, you don't have to open everything. आप तो सब मैं तो कुछ चर्च जाता हूँ, जानते हैं। हमारा चर्च 9 बजे लगता है, हम तो ऐसा करते हैं। अरे भाई, आप जिस कलीसिया के मेंबर हो ना, ये यूनिवर्सल चर्च है। Come on. हम तो भोपाल में बस लोकली मिल रहे हैं, पर दिल्ली की कलीसिया, भोपाल की कलीसिया, साउथ इंडिया की कलीसिया, अमेरिका की कलीसिया, सब एक से जुड़े हैं जिसका नाम यीशु है। Come on. हालेलुया। There are so Hallelujah. many churches all over the world and we are just part of that body. हम तो भोपाल में थोड़े से क्रिश्चियन हैं ना, थोड़े से, वो तो क्या हुआ, दुनिया में तो और भी है ना। Come on. वो भी तो तुम्हारे भाई हैं, वो भी तो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भाई करो ट्रांसलेट, समझ नहीं आएगा नहीं तो। We think we are very few in numbers, especially in Bhopal, but there are so many other people all around the world. They are also there with you. But I'm telling you, a time is coming. तो मैं आपको बता Come रहा on. हूँ, Roads will be filled Come by people who are on. believing in this. Amen. सड़कें भर जाएंगी ऐसे लोगों से जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आप में से कुछ लोग अगर ये सोच रहे थे कि मरते तक हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ जीते Come on. जी देखो Amen. भोपाल में क्या कर रहे See हैं। the You will goodness of the see Lord in the land. while you're living that people will be receiving Jesus. Come on. Problem with today's church is they want to do everything with death. आजकल की कलीसिया का प्रॉब्लम ये है कि उनको सब कुछ मृत्यु के बाद, जब यीशु आएगा बादलों पे तब सब ठीक हो जाएगा। when Jesus comes back on the clouds, then everything will हाँ be तब तो okay. हो जाएगा, पर उसके पहले भी कुछ पैकेज और प्रोमिसेस देके गया है वो। Yeah, come Some on. things will happen when he comes, but he has given things which will happen before he comes. समझ रहे हैं? हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ जीते हैं
पर हम सब कुछ डाल देते हैं सेकंड कमिंग पे। इसको बीमारी है, यीशु आएगा ठीक हो जाएगा। We यीशु live- आने के पहले मर गया तो We live here and we say, oh, when Jesus comes, he will be healed. But what happens if he dies before Jesus comes? बाइबल में कुछ प्रोमिसेस दिए, आई एम द लॉर्ड योर हीलर। The Bible says कि परमेश्वर आपका चंगा करने द वाला है। नेम ऑफ जीसस इज अबव एवरी नेम। और परमेश्वर का नाम, यीशु का नाम, सब नामों तो से जब ऊंचा है। बीमार को देखो So when you see a तो person उसको who ये is मत sick, बताओ यीशु आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसको बोलो अभी चंगाई अवेलेबल है अगर तू वचन पर विश्वास करेगा तो। don't tell them that you will be healed when Jesus comes back. Tell them you are healed now. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Are you guys learning something? आप सीख रहे हैं? Are you guys learning something? क्या आप सीख रहे हैं? Because this is the truth that has to come into the life of a believer. क्योंकि ये सच्चाई है जो हर मसीह के जीवन में आना जरूरी Tell है। your neighbor, I have an assignment. अपने बाजू वाले से बोलें, तेरे जीवन And I'm going to do it in this month. और मैं इस महीने में उसे करने जा रहा हूँ। One more time, I have an assignment. मेरे जीवन में एक ऐसा And I'm going to do it in this month. और वो इस महीने में मैं करने जा Come रहा on, हूँ। open your Bible, pick up your Bible. I want to show you your assignment. Okay? अपने वचन को खोलें और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपका क्या असाइनमेंट है। Come to the book of 2 Corinthians.